Assalamu alaikum dear students. I am your science subject teacher. Today I will teach you unit 4. The topic is causes, symptoms and prevention of some common diseases. Disease is a unstable condition of a whole body or a part of the body. These diseases, as we know, that microorganisms such as viruses, bacteria, fungi, protozoan causes diseases in human, plants and animals. We learned about the microorganisms in unit 2. These microorganisms are called pathogenic microorganisms in human. Most of the dangerous diseases are caused by viruses, bacteria, protozoan. Fungi cause mild diseases such as ringworm, athlete foot. In this chapter, we learned the causes, symptoms and prevention of some diseases. These diseases are caused by virus, bacteria or fungi. The number one disease which we learned is common cold, which caused by the virus. This is a viral disease. The common cold virus attacks the mucous membrane of the nose, throat and the air passage. Symptoms means alamat. Symptoms: watery discharge through the nose, headache, some throat, sore throat, sneezing, watering of the eyes. The infected person may have fever. यानी ये कॉमन जो है सर्दी जो है नज़ला ज़ुकाम है, ये हमारी कॉमन डिजीज़ है जिसमें नाक बहती है और गले में तकलीफ़ होती है और छींकें वगैरह आती हैं, आँखों से भी पानी बहता है और वो जो है इन्फेक्टेड पर्सन को कभी बुखार भी हो जाता है. ट्रांसमिटेड बाय, ये किस तरह से दूसरों तक पहुंचती हैं? थ्रू एयर, स्नीजिंग एंड कफिंग, कॉन्टैक्ट विद पर्सनल articles infected by the nasal discharge of the patient. पेशेंट का डिस्चार्ज जो नाक खांसने से, छींकने से और नाक बहने से जो है, ये जरासीम जो होते हैं उसे एक इन्फेक्टेड पर्सन के दूसरे हेल्दी पर्सन तक पहुंचते हैं. सेकेंडली, हम इसके किस तरह से एहतियात कर सकते हैं? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. Infected person must cover mouth and nose while coughing and sneezing. No cure exists for the common cold, but discomforts may be reduced by the taking analgesics and decongestants. वायरल डिजीज़ का कोई प्रॉपर एंटीबायोटिक्स या वो नहीं होती है. ये इनके लिए सिर्फ ये हो सकता है कि जो अगर दर्द हो रहा है उसके लिए हम पेन किलर्स वगैरह लें और जो कंजेशन गले में या सीने में और होता है उसको दूर करने की हम दवाएं ले सकते हैं. सेकेंड डिजीज़ इज़ आल्सो वेरी कॉमन डिजीज़. दिस इज़ अ चिकन पॉक्स. दिस इज़ अ हाईली infectious disease caused by the virus varicella zoster. It commonly affect children. Symptoms जो होते हैं इसके: fever followed by the appearance of itchy skin, rash and chest, face, abdomen and limbs. इसमें सीने पर, चेहरे पर और जो है दाने वाने से उभर आते हैं और उसमें काफ़ी मतलब खारिश सी होती है. किस तरह ट्रांसमिटेड होती है? थ्रू एयर, कफिंग एंड स्नीजिंग, contact with infected person or with articles used by the infected person. What is the prevention? The prevention and control: isolate the infected person and article used by him. There is no vaccine against the disease. However, once a person has suffered from the disease, he or she gets lifelong immunity फ्रॉम इट. एक दफ़ा अगर ये बीमारी किसी को हो जाती है तो इसकी बॉडी में इम्यूनिटी हो जाती है और फिर इसको दोबारा इसके होने के चांसेस नहीं होते. नाउ वी विल द थर्ड डिजीज़ कॉज बाय द वायरस, पोलियो. इट इज़ कॉज बाय द पोलियो वायरस. इट इज़ इन दिस सीवियर फॉर्म it affects the nervous system and causes paralysis. A large number of children have been
क्रिप बाय द डिजीज़। आप देखिए इस पैर में जो है, पोलियो में जो है पैर जो है अक्सर अफेक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से वो चलने से भी बच्चे माजूर हो जाते हैं। बच्चों में डिजीज़ ज़्यादा होती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? अर्ली सिम्टम्स आर फीवर, वॉमिटिंग एंड हेडेक। दिस इज़ फॉलोड बाय पेन एंड स्टिफनेस ऑफ द नेक एंड बैक। फाइनली पैरालिसिस ऑफ लेग्स टेकिंग प्लेस, यानी पैर जो है इसमें पैरालाइज हो जाते हैं। ट्रांसमिटेड किस तरह ट्रांसमिट होती है? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर वायरस इन द excreta of the infected person may be transmitted the food and water by flies. infected persons के वो जो होते हैं जो चीज़ें होती हैं उसके रफ चीज़ों को जो होती है वो उसको जो वॉमिटिंग वगैरह जो होती है उसके ज़रिए जरासीम जो है फूड वगैरह पे बैठते हैं, मक्खियों के ज़रिए। इसकी प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। द ओरल पोलियो वैक्सीन इज़ वेरी इफेक्टिव। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हैज़ अंडरटेकिंग ऑफ लार्ज स्केल program to eradicate the diseases by giving the vaccine to millions of children all over the country. Patients should be kept in proper sanitary condition. Physiotherapy reduce the paralysis lytic effect. इसकी पोलियो की वैक्सीन होती है, जिसकी वजह से अगर इसको लेने से पहले से इस बीमारी से महफूज रह सकते हैं। और गवर्नमेंट जो है इस चीज़ के लिए बहुत काम कर रही है। आप अक्सर देखते होंगे कि घरों पे आ रहे होते हैं जो पोलियो के ड्रॉप्स वगैरह बच्चों को पिलाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से स्टाफ आता है। रेबीज़ और हाइड्रोफोबिया, इस डिज़ीज़ में इसको हाइड्रोफोबिया इसलिए कहते हैं, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोबिया मीन्स फेयर। तो इसमें बच्चा जिसको भी बीमारी हो जाती है वो पानी से खौफज़दा होने लगता है। इट इज़ कॉज बाय द रेबीज़ वायरस। इट इज़ वेरी डेंजरस डिजीज़ ऑफ द नर्वस सिस्टम। इट इज़ प्राइमरीली अ डिजीज़ ऑफ एनिमल लाइक डॉग्स एंड मंकीज़ या डॉग्स के लुआब जो से वो होता है, लुआब जो होता है मुँह का, उसमें जो है इसके वायरस मौजूद होते हैं। सिम्टम्स: सीवियर हेडेक, फीवर, nausea and pain at the side of the bite, followed by convulsions, inability to the fluid. Pets, bitten person should be give anti-rabies vaccine. Wood should be scrubbed with soap and wash with plenty of water. इसकी जो वैक्सीन होती है उसके लेने से जो है किसी हद तक इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया डिजीज़ कॉज बाय द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियल डिजीज़ में सबसे कॉमन डिजीज़ आप सुना होगा ट्यूबरक्लोसिस का नाम सुना होगा। ट्यूबरक्लोसिस इज़ कॉज बाय द बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इट इज़ dreaded diseases that affect the lungs but may also affect the brain
बोन्स एंड जॉइंट्स। लंग्स जो होते हैं ज़्यादातर इसमें अफेक्टेड होते हैं, लेकिन दिमाग में और हड्डियों में और जॉइंट्स पर भी इस जर्म्स का असर होता है। एंड इंटेस्टाइन आल्सो, ट्यूबरक्लोसिस आल्सो कॉल्ड टीबी विच मीन्स ट्यूबर बैसिलस। सिम्टम्स जो हैं इसके ये हैं फीवर, कफ, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ वेट, वीकनेस, स्पीटिंग ऑफ ब्लड। इस बीमारी के जो है से बुखार होता है, खांसी होती है और वेट लॉस होने लगता है, भूख की कमी हो जाती है और इसके साथ साथ वो जो है खून आखिरी स्टेज पे खून भी थूकना शुरू कर देता है कफ के साथ जो है। ट्रांसमिटेड mainly through air. Prevention and cure, immunization with BCG vaccine provides immunity against the disease. It can be treated the antibiotics. The patient should be isolated to prevent spread of the diseases. इसके लिए BCG वैक्सीन का यूज़ किया जाता है और दूसरा जो है एंटीबायोटिक्स लिए जाते हैं इस बीमारी को से बचाव के लिए, और दूसरा पेशेंट को आइसोलेट करते हैं। Now we will learn about the cholera. It is also a bacterial disease. Cholera is caused by the bacteria Vibrio cholera. It is an acute diarrhea disease. The loss of fluid from the body may lead to severe dehydration and death. कॉलेरा जो होती है इसमें बहुत ज़्यादा डायरिया की है एक सीवियर कंडीशन है, जिसमें बहुत ज़्यादा मोशंस होते हैं बॉडी से और वॉमिटिंग भी होती है और मोशन भी होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी से पानी के चले जाने की वजह से कंडीशन में सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाती है और मौत तक की नौबत आ जाती है, डेथ तक की नौबत। सी व्हाट आर दी सिम्टम्स एक्यूट वाटरी डायरिया, the stool may look like rice water.
कोलाई एचेरिशिया कोलाई कहते हैं, या एंटेमोeba हिस्टोलाइटिका जो डायरिया या गैस्ट्रोएंटेराइटिस बीमारी कॉज करती हैं। डायरिया में लूज मोशंस होते हैं। सिम्टम्स इसके क्या है? लिक्विड और सेमी लिक्विड स्टूल several times a day which may have blood or mucus, vomiting and abdominal pain may occur. Transmitted, ये बीमारी भी जो है किस तरीके से डायरिया होता है? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर. प्रिवेंशन एंड क्योर, प्रॉपर sanitation, keep food and water covered, wash vegetables and fruits before eating. Patient must be given oral rehydration to restore the fluid lost, otherwise dehydration may occur. Antibiotics are used to treat the diseases. इसमें भी हमें फूड को जो है कवर करना चाहिए, पानी बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए, जो सब्जियां फ्रूट जो हैं उनको हम धो के साफ़ सुथरा करके खाएं, और जो है डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए ORS का पानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं ताकि बॉडी में जो है फ्लूइड रिस्टोर हो, वरना डिहाइड्रेशन के चांस बढ़ जाते हैं. और एंटीबायोटिक्स जो है वो हम यूज़ करेंगे टू ट्रीट द डिजीज़. यहाँ हमने वी लर्न अबाउट द सम डिजीज़ caused by the virus and bacteria and their symptoms, their and how they are transmitted and their prevention and cure. We use to cure the diseases vaccine or antibiotics. Our body already has a several defense against microorganisms and prevent the diseases. For example, white blood cells in our body defense play a very important in defense. Or antibodies are also immunity produced when any microorganism enter our body to save our body from the diseases. And we also use the antibiotics. We also use the antibiotics. Antibiotics are the drugs that kills the bacteria in the blood without killing the cells of the body. Antibiotics are obtained from bacteria, molds, fungus and other microbes. These are the tables of antibiotics. Let's see, penicillin we get from fungus or fungi, ampicillin from fungus, erythromycin from bacteria, neomycin from bacterium, streptomycin also bacterium, and tetracycline is also bacterium. We use the antibiotics to use against the diseases to save our body. And we also use the vaccine. And what is vaccine? A vaccine is a small amount of the disease causing microorganism that have been weakened or killed so that they will not cause the diseases. वैक्सीन क्या है? इसमें वैक्सीन में जो है हमें वीकेंड और किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो होते हैं जो हमारी बॉडी में क्या की जाती है? वी इंजेक्ट और स्वेलर. आपने देखा होगा अक्सर वैक्सीन वगैरह के ड्रॉप्स वगैरह घरों में आते हैं गवर्नमेंट के, वो जो पिलाते हैं ताकि हम उसके ज़रिए वैक्सीन दी जाती है बीमारी से दूर रह सकें. और ये वैक्सीन जो दी जाती है इसको हम वैक्सीनेशन कहते हैं. वैक्सीनेशन इज़ अ वेरी preventing pathogenic microorganism from causing diseases. If the antibiotics bodies are against the produce the antibodies against the diseases causing microbes in the vaccine. The antibodies and destroy the weakened microbes as enter the body. These antibodies remain in the body to fight of the attack by that patient develop microorganism in future.
इस वैक्सीन का काम ये होता है, इन वैक्सीन के ज़रिए जब वैक्सीन बॉडी में इंजेक्ट की जाती है तो क्योंकि इनके अगेंस्ट फ़ौरन हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ जो होती हैं प्रोड्यूस हो जाती हैं, क्योंकि इस वैक्सीन में कमज़ोर या डेड माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं, वो उन पर अटैक करके उन्हें ख़त्म कर देते हैं। लेकिन उसके नतीजे में ये होता है कि ये एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में मौजूद रहती हैं। इसलिए जब जिस स्पेसिफिक बीमारी के ये वैक्सीन जो है हमें दी जाती है, उसके माइक्रो ऑर्गेनिज़म जब हमारी बॉडी में एंटर होते हैं या अटैक करते हैं हमारी बॉडी के, तो ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में मौजूद होती हैं, तो ये इन पर अटैक करती हैं और इनको ख़त्म कर देती हैं। इसलिए इन वैक्सीन का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखिए, इट्स अ टेबल ऑफ सम वैक्सीन, DPT और डिप्थीरिया TT, इसके बाद है पोलियो, मीज़ल्स, स्मॉल पॉक्स, टाइफॉइड और BCG। ये जो हैं वैक्सीन हैं, कॉमन वैक्सीन है जो छोटे बच्चों को बाय बर्थ के टाइम पे भी बाद में दी जाती है इनको, और फिर कुछ एज लिमिट होती है जिसमें ये वैक्सीन दी जाती है। कुछ वैक्सीन ऐसी होती है कि जो हम कभी भी ले सकते हैं, मसलन टाइफाइड वगैरह या BCG के भी जो होते हैं हमें बाद में दिए जाते हैं। We have learned lot of about the diseases and treatment of diseases. I hope you will be understand this chapter, this unit. If you have any confusion about the diseases, and you may ask, and you also read and learn this chapter thoroughly. Okay, thank you.